ضلع کے بی آسیاباد کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نیتیکا پنت IPS نے آج SP آفس میں مختلف مقامات پر گمشدہ شکایت وصول کرنے کے بعد موبائل فون کو آج موبائل ریکوری میلے کے ذریعے لگ بھگ 23,40,000 روپے کی لاگت کے 117 موبائل فون کو ان کے مالکین کے حوالے کر دیا۔ اس موقع پر ضلع SP نیتیکا پنت IPS نے کہا، جہاں بھی کسی کا موبائل گم ہو جاتا ہے CIR پورٹل کے ذریعے گم ہونے والے فون کو بلاک کرتے متعلقہ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروانے کا عوام کو مشورہ دیا جاتا ہے۔ لریڈی BSP پارٹی صدر مارلو سائی بابو نے کہا کہ کل ضلع پر بہوجنا سنکلپ دیوس سبھا کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کو کامیاب کرنے کے لیے تمام ارکان کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ اس سبھا میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے چیف زون انچارج ایڈوکیٹ N رامچندرم گنگادھر اور دیگر حصہ لیں گے۔ ضلع کے بی آصف آباد کے کاغذ نگر گورنمنٹ ہسپتال کا آج CPM رکن ریاستی کمیٹی بھوپال نے اپنے ہمراہ ڈسٹرکٹ سیکریٹری کے راجنا کوٹا سریواس M آنند سریواس راجندر راجیش سدرشن سدھاکر کے ساتھ مل کر دورہ کیا اور مریضوں سے ملاقات کرتے ہوئے یہاں کے حالات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بھوپال نے کہا کہ حکومت کاغذ نگر گورنمنٹ ہسپتال کو 30 بستروں سے 100 بستر میں اپ گریڈ کرنے کے احکام دیے ہیں، لیکن مقامی دواخانے میں تعمیراتی کام سست اور تاخیر سے چل رہے ہیں۔ لریڈی مسلم ویلفیئر کمیٹی صدر شیخ غیاث الدین نے آج کمیٹی کے ذمہ داران محمد مکرم علی، احمد پاشا، سید مبین، مجیب احمد عادل نے محکمہ فائر آفیسر کی حیثیت سے ونود کمار کو ترقی ملنے پر شال پوشی کی اور تہنیت پیش کرتے ہوئے مبارکبادی دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ کوروٹلا منڈل ایجوکیشن دفتر میں بروز جمعہ کوروٹلا منڈل اپر پرائمری اسکول، کستوربا گاندھی گرلز اسکول، ماڈل گرلز اسکول کے ہیڈ ماسٹروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں منڈل ایجوکیشن آفیسر G سریشم نے ہر ایک اسکول کے اساتذہ سے کہا کہ طلباء کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے طلباء کی حاضری کو ضروری طور پر درج کرے۔ طلباء کی تعداد میں اضافہ کرنے والے صدر مدرس جناب V گنگادھر ستیہ نارائنا اور دیگر کی تہنیت بھی کی گئی۔ کوروٹلا پولیس اسٹیشن میں SI کی ڈیوٹی انجام دینے والے عہدیدار چرنجیوی کو بغیر کسی جامع تحقیقات کے معطل کیا جانا ناانصافی ہے۔ حلقہ اسمبلی کوروٹلا امبیڈکر یوجنا مسلم کے قائدین تلنگانہ SC/ST کمیشن چیئرمین B شنکریا نے اس عمل کی سخت مذمت کی اور آج کوروٹلا آمد پر کمیشن چیئرمین وینکٹیا نے چیئرمین دستورساز کمیٹی کے مجسمے پر پھول ڈال کر خراج عقیدت پیش کیا اور اس موقع پر امبیڈکر یوجنا سنگم کے قائدین اور چیئرمین کو تہنیت بھی پیش کی۔ قدیم شہر بودھن میں واقع درگاہ حضرت سید شاہ جلال بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سر روزہ عرس تقاریب کا جاریہ ماہ کی 29 تاریخ کو آغاز عمل میں آئے گا۔ بلدیہ بودھن کی جانب سے عرس تقاریب میں شرکت کرنے والے زائرین کے لیے کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے کمشنر بلدیہ جادھو کرشنا کے ہمراہ ٹاؤن صدر کانگریس دامو، ضلع نائب صدر کانگریس شیخ محی الدین پاشا، نمائندہ چیئرپرسن بلدیہ بودھن شہر تحریک کونسلر اراکین بلدیہ محمد ظہیر الدین شیخ جاوید، سابق کونسلر شیخ وحید شیخ کلیم، چیئرمین اردوگھر انتظامی کمیٹی بودھن سید لیاقت حسین المعروف بابا بھائی بیٹری ڈبو نے عرس کمیٹی کے معتمد محمد یونس کے ہمراہ درگاہ شریف کے اطراف اکناف کیے جا رہے صاف صفائی زائرین کے لیے بنیادی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ سرکل انسپکٹر پولیس بودھن وینکٹ نارائنا کی اطلاع کے مطابق ذہنی طور پر معذور عبدالزبیر ولد عبدالقیوم عمر 33 سال ساکن تیر گلی بودھن 22 تاریخ کو اپنے گھر سے نکلے تھے، تاحال گھر واپس نہیں لوٹے۔ CI نے کہا اگر کسی شخص کو اس گمشدہ شخص کے بارے میں کوئی معلومات حاصل ہے تو وہ بودھن ٹاؤن پولیس کو اطلاع دیں۔ گھر سے جاتے وقت ان کے جسم پر نیلے رنگ کی شرٹ اور نیلے رنگ کی جینز پینٹ تھی۔ سرکل انسپکٹر پولیس بودھن کے مطابق گمشدہ شخص کے بھائی عبدالعقیل کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ضلع منچیال کے چنور کے نوجوان کانگریس لیڈر لنگم پلی مہیش کو کانگریس ٹاؤن کنوینر مقرر کیا گیا ہے۔ DCC صدر رگھوناتھ ریڈی نے احکام جاری کر دیے ہیں۔ اس موقع پر کانگریس قائدین اور چنور کی عوام نے انہیں مبارکبادی پیش کی۔ لنگم پلی مہیش نے چنور MLA ریاستی وزیر G وویک وینکٹ سوامی کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ریاستی ہائی کورٹ کے معزز جج جسٹس مادھوی JV، جسٹس لکشمی نارائن ایلیشٹی اور جسٹس G پروین کمار کی نظام آباد ضلع کی آمد پر ضلع انتظامیہ اور عدالتی حکام نے استقبال کیا۔ معزز ججز نے اور NB گیسٹ ہاؤس پہنچنے پر اس کی جانب سے پیش کردہ گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، سلامی دی گئی۔
इस मौके पर जिले जज GVN भारत लक्ष्मी, पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य, एडिशनल कलेक्टर V भज्जंगरा और इस्लामाबाद RDO राजेंद्र कुमार, मुख्तलिफ महकमों के जिले अफसरान, अदालती हुक्काम, वकला और बार एसोसिएशन के नुमाइंदों ने मौजूद जज साहिबान से मुलाकात की, उनका खैर मकदम के गुलदस्ते भी पेश किए। कामारेड्डी म्यूनसिपल चेयरपर्सन उमा रानी सिवास ने BJP पर इल्जाम लगाया कि म्यूनसिपल काउंसिल को अवामी मसाइल के हल के बजाय जमाती सियासत का मरकज बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने साथ ही काउंसिलर्स और कोऑप्शन अरकान कैमरा जिले कलेक्टर आशीष सांगवान को याददाश्त पेश करते BJP काउंसिलर्स के मुबैना रवैये पर कार्रवाई का मुतालबा किया और कहा कि BJP तरक्याती मंसूबों में रुकावटें डाल रही है, इजलास में हंगामा आराई कर रही है, अवामी मफाद के कामों को मुतासिर कर रही है। उमा रानी ने दावा किया कि शहर की तरक्की के लिए पेश किए जाने वाले मंसूबों को सियासी मकसद के तहत रोका जा रहा है। इस मौके पर दूसरे म्यूनिसिपल काउंसिलर्स भी मौजूद थे। निर्मल जिले DMLHO डॉक्टर राजेंद्र ने निर्मल बस्ती दवाखाने का अचानक मुआयना किया। बस्ती दवाखाने डॉक्टर मरियम से तफसीलात हासिल की और उन्हें हिदायत दी कि वो मौसमी बीमारियों मरीजों की आमद पर खुसूसी तवज्जो दे और खौतिरखा इलाज करे और दवाखाने से रुजू होने वाले मरीजों से हुस्न सलूक किया जाए, उनकी तकालीफ और दर्द मर्ज के बारे में मालूमात हासिल करते हुए उन्हें मौसर इलाज फराहम किया जाए, क्योंकि हुस्न सलूक के जरिए मरीजों में हौसला बढ़ता है। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की कोई कमी नहीं है। मुसलसल मौसम की तब्दीली की वजह से मामूली बुखार, सरदर्द वगैरह को लेकर मरीज दवाखानों से रुजू हो रहे हैं। उनकी अच्छी तशखीस करना डॉक्टरों की अव्वली जिम्मेदारी है। उन्होंने डॉक्टर मरियम फातिमा की बस्ती दवाखाने पर कारकर्दगी को लेकर भी इत्मीनान का इजहार किया। जिले के बियासीबाद के सिरपुटोंग के डुबागौड़ा में फॉरेस्ट महकमे की जानिब से मौजूदा प्लांटेशन का आज डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर बालामनी IFS ने अपने हमरा डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर यप्पा के साथ मिलकर मुआयना किया। इस मौके पर मुकामी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर श्रीनिवास से तफसीली तौर पर प्लांटेशन में पौधों की देखभाल और फॉरेस्ट राजी में पौधे लगाते हुए शजरकारी करने के अलावा जंगलाती मुलाजिमी को हिदायत जारी की। जंगल में दरख्तों की कटवाई और गैर कानूनी लकड़ी की मुंतकिली से मुताल्लिक कड़ी नजर रखने अहदेदारान को हिदायत दी। बादशाह मुकामी प्लांटेशन के हदूद में पौधों को लगाकर वक्त पर पानी डालने की अहदेदारों को हिदायत दी। LID म्यूनसिपल चेयरमैन पद्मा सिकात ने आज काउंसिलर तिरुपति, सैयद गफ्फार, चंद्रैया, दशरथ और कायदीन में प्रशांत गौर, विद्यासागर, डॉक्टर श्याम और दीगर के साथ मिलकर उनके असम्बली मदर मोहन से हैदराबाद में उनके ख़यामगाह पर खैर सगारी मुलाकात की और म्यूनसिपल के मुख्तलिफ तरक्याती कामों पर तबादले ख्याल किया। जग्गारेड्डी वर्किंग प्रेसिडेंट TPCC कांग्रेस पार्टी ने कहा, राहुल गांधी और तलबा की जिदोजहद के नतीजे में धर्मेंद्र प्रधान मरकजी वज़ीर तालीम इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हो गए और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। धर्मेंद्र प्रधान ने मुल्क के तालीमी वज़ीर के अहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। ये फैसला कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज के बाद सामने आया है, जिसमें नीट पेपर लीक मामले पर उनकी बरतरफी का मुतालबा किया गया था। ये पेशरफ्त उस वक्त हुई जब मरकज़ ने हायर एजुकेशन सेक्रेटरी विनीत जोशी को भी हटा दिया था। जुमे को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ मुल्क भर में जारी एहतजाज के दरमियान एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 47 अफसरान को बरतरफ कर दिया। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने नीट पेपर लीक होने पर दिल्ली में तलबा के पुरअमन एहतजाज करने पर दिल्ली पुलिस के जाबिराना रवैये पर सख्त बरहमी का इजहार करके कहा कि ये डरने वाली नस्ल नहीं है बल्कि डराने वाली नस्ल है, जिससे टकराकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बड़ी गलती की है, जिसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान फौरी मुस्तफ़ा हो जाएं या हुकूमत उन्हें वज़रात से बरतरफ कर दें। BRS के तलबा तंजीम ने मुल्क भर के लाखों तलबा के मुस्तकबिल को तारीक करने वाले नीट पेपर लीक स्कैंडल और दिल्ली के जंतर मंतर पर पुरअमन एहतजाज करने वाले तलबा पर पुलिस के बेरहमाना लाठी चार्ज व तशद्दुद के खिलाफ धरना चौक इंदिरा पार्क पर धरने का एहतमाम किया, जिसमें रियासत के मुख्तलिफ अजला से हज़ारों तलबा ने शिरकत की। साबिक़ वज़ीर KTR ने तलबा के हुकूक़ और उनके साथ नाइंसाफ़ी की मुखालिफत में आज अपनी सालगिरह तकारीब को मनसूख कर दिया। शहर हैदराबाद में नशीली अद्वियात का चलन दिन ब दिन आम होता जा रहा है। गांजे के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाइयों के बाद अब ऐसा जाहिर हो रहा है कि मेडिकल दुकानात के ज़रिए नशीली अद्वियात फ़रोख्त की जाने लगी हैं और अक्सर ऐसे स्लिम इलाके में इन अद्वियात का फ़रोख्त होने की इत्तलात पाई जाती हैं। गुंजान आबादी वाले इलाकों में पाई जाने वाली मेडिकल दुकानात के ज़रिए दुकानदारों को ज़ायद फ़ायदा का लालच देकर नशीली अद्वियात और इंजेक्शन फ़रोख्त किए जा रहे हैं। हालांकि गुज़िश्ता दिनों एक कार्रवाई में हबीबनगर और CCS की स्पेशल क्राइम टीम ने इस तरह की एक रैकेट को पर्दाफाश किया था और शहर में एक बड़ी साजिश को बेनकाब किया था। आमतौर पर एलोपैथिक अंदाज की दिखाई देने वाली गोलियों के अंदाज में नशे की गोलियां तैयार की जाती हैं।
बिदर से हैदराबाद मुंतकिल करते हुए अफजल सागर मांकर बस्ती से चलाए जा रहे रैकेट को पुलिस ने बेनकाब किया। इस रैकेट का पर्दाफाश करने के बाद तशवीशनाक इतलात मंजर आम पर आईं। शहर के इलाके बालापुर में आज इस वक्त सनसनी पैदा हो गई जब मुकामी आवाम ने खुद कार्रवाई करते हुए अगवाकारों को रंगे हाथों पकड़ लिया और बाद में पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया। मुकामी आवाम की बर वक्त चौकसी और मुस्तैदी ने कमसिन बच्चों को बचा लिया। बताया जाता है कि 2 अफराद जो इलाके में घूम रहे थे कमसिन बच्चों को मुबैना तौर पर अगवा करने का मंसूबा रखते थे। मुकामी ज़राए के मुताबिक इन 2 अफराद ने, जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, बच्चों को पैसे का लालच दिया और अपने जाल में फांसने की कोशिश कर रहे थे। मामला उस वक्त बच्चों ने मंजर आम पर लाया जब उन अफराद के साथ जाने से इनकार कर दिया। काफ़ी देर की कोशिश के बाद मंसूबे को नाकाम होता देखकर मुश्तबा अगवाकारों ने बच्चों के साथ गाली गलौज शुरू कर दी और उन्हें खौफजदा कर रहे थे कि मुकामी आवाम ने उनकी सरगर्मी को देख लिया और बच्चों को बचाते हुए इन मुश्तबा अगवाकारों को खूब पिटाई कर दी और ताखिर से पहुंची बालापुर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि मुकामी आवाम की बरहमी का शिकार ये मुश्तबा अगवाकार ज़ख्मी हो गए। तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन की जानिब से चलाई जाने वाली खुसूसी जामी नज़रसानी SIR मुहिम के तहत फील्ड तस्दीक के दौरान एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। ताहाल BLOs की जानिब से तकसीम किए गए एनुमरेशन फॉर्म्स में तकरीबन 24 लाख वोटर्स नाकाबिल जमा यानी नॉन कलेक्टिबल ज़ुमरे में पाए गए हैं, जिनके फॉर्म वापस जमा नहीं हुए। इनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट से खारिज कर दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की ऑनलाइन पोर्टल में BLOs की जानिब से अपडेट करदा एदाद शुमार के मुताबिक मनसूख होने वाले नामों की तफसीलात कुछ इस तरह है। तकरीबन 6 लाख फी अफराद के नाम वोटर लिस्ट से अब भी दर्ज पाए गए हैं। 12 लाख से ज़ायद वोटर्स मुस्तकिल तौर पर दूसरी जगह पर मुंतकिल हो चुके हैं और 2 लाख ऐसे डुप्लिकेट वोटर्स की निशानदेही हुई है जो इससे ज़ायद मुख्तलिफ मकामात पर रजिस्टर है। तकरीबन 78 वुज़रा वोटर्स अपने दिए गए पतों पर मौजूद नहीं मिले। हुकाम का कहना है कि 2 जगहों पर इंदराज, शादी, मुलाजिमत या मुनासिब दस्तावेज़ात की अदम फराहमी के बायस ये फॉर्म्स ऑनलाइन दाखिल नहीं हो सके। CPI की रियासती सेक्रेटरी सांबा सेवा राव ने नीट पर्चे के अफशा के खिलाफ नई दिल्ली में जारी तलबा के एहतजाज से इजहार गानियत और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से ताकत के ज़रिए एहतजाज को कुचलने की कोशिशों के खिलाफ रियासत गिर सतह पर एहतजाज का ऐलान किया। सांबा सेवा राव ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि 27 जुलाई को तमाम ज़िला कलेक्टर्स और हैदराबाद में लोक भवन के रूबरू एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। 6 ta 14 अगस्त रियासत भर में पदयात्रा और शोर बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। 1 सितंबर को चलो दिल्ली प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया जाएगा जिसमें तेलंगाना से सैकड़ों अफराद की शिरकत का इम्कान है। उन्होंने कहा कि 11 ta 17 सितंबर तेलंगाना मसले जदोजहद की याद में तकारीब मुनक़िद की जाएगी। सांबा सेवाराव ने जंतर मंतर पर एहतजाजी तलबा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मज़म्मत की और कहा कि जमहूरी अंदाज में एहतजाज को ताकत के ज़रिए ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद और अतराफ के क्योर अर्बन रीजन में इंदिरा हाउसिंग स्कीम पर अमल आवारी का जायजा लेते हुए आबादी वाले इलाकों में मकानात की तामीर की हिदायत दी ताकि गरीब खानदानों को रोज़गार और बुनियादी सहूलतें बआसानी हासिल हो सकें। चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर हाउसिंग P श्रीनिवास रेड्डी और वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूना प्रभाकर के हमरा आला सतही इजलास में क्योर अर्बन रीजन के तहत इंदिरा हाउसिंग स्कीम पर अमल आवारी का जायजा लिया। अहदेदारों ने बताया कि शहरी इलाकों और ख़ास तौर पर क्योर अर्बन रीजन में मकानात के लिए ऑनलाइन दरखास्तों के अतकाल का आगाज़ हो चुका है। चीफ मिनिस्टर ने हिदायत दी कि आउटर रिंग रोड के हुदूद में मुख्तलिफ सरकारी महकमात के गैर मुस्तमिल अराज़ी की निशानदेही की जाए। हुक्काम ने मुख्तलिफ असम्बली हल्कों में पहले से शनाख्त करदा अराज़ी की तफसीलात से वाकिफ़ कराया। हैदराबाद के 17 असम्बली हल्काजात में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के पहले मरहले का आगाज़ हुआ है। तेलंगाना के निर्मल के शहरी की अमेरिका में सड़क हादसे के बाद दौरान इलाज मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक 24 साला नीतानंदा रेड्डी साकिन नरसापुर लक्ष्मण चंदा मंडल निर्मल जो आला तालीम के लिए 3 साल कबल अमेरिका गया और वहां तालीम हासिल कर रहा था। 18 जुलाई को जब वो एक बाइक पर जा रहा था कि तेज़ रफ्तार कार ने उसे टक्कर दी, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हो गया, जिसे फ़ौरन दवाखाना मुंतकिल किया गया। नित्यानंदा रेड्डी की 23 जुलाई को सालगिरह थी। उसके दोस्तों ने उसकी सालगिरह तकरीब दवाखाने में ही मनाने का फ़ैसला किया और केक लेकर दवाखाना पहुंचे और वहां केक काट कर जश्न मनाया गया, जिसके चंद मिनटों बाद इसकी तबीयत मज़ीद बिगड़ गई और वो फौत हो गया। नित्यानंदा के दोस्त और अफराद ख़ानदान में इसकी मौत की इत्तला के बाद गहरे गम में डूब गए। सालगिरह के दिन ही मौत एक अजीब इत्तेफाक है। नित्यानंदा रेड्डी के अहल खाना ने हुकूमत से अपील की कि इसकी नाश को जल्द अज जल्द आबाई मुकाम पर लाने के लिए इंतजामात